Hi guys, welcome to the next lecture. We'll be studying different remedies which are available in torts. So the first remedy which is available is damages. Second is injunction. Third is restitution of property. Fourth is the writ of mandamus, which is in vicarious liability. Liability. Then there is habeas corpus. It is under false imprisonment. मतलब जब भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रोस्पेक्ट है तो मैंडमस ले सकते हैं एज अ रिट। एंड अगर कोई फॉल्सली किसी को इम्प्रिजनमेंट किसी को जेल में डाल दिया है तब हम हेबियस कॉर्पस की रिट डाल सकते हैं। ये मैं आपको और ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स में भी पढ़ाऊंगा, तो निश्चिंत रहिए। दीज आर दी रेमेडीज विच वर अवेलेबल। एंड अब इनके स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट है विच आर डैमेजेस एंड इंजंक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे डैमेजेस, फिर इंजंक्शन, फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा। राइट, सो डैमेजेस आर व्हाट दे आर द पेक्यूनियरी compensation awarded by law to a person for the injury sustained due to the wrongful act of another. Right, it is not designed only as a compensation to victim but also as punishment to a wrongdoer. There are three considerations in it. First, was the damage the result of defendant's wrongful act? Second, what is the degree of remoteness between act and injury? थर्ड इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, तीन चीजें हैं, ध्यान रखना है। डैमेजेस में तीन चीजें हैं। डैमेजेस में तीन चीजें कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंडेंट्स को रॉन्गफुल एक्ट था या नहीं, रॉन्गफुल एक्ट था या नहीं। सेकंड, रिमोटनेस कितनी है इन बिटवीन एक्ट एंड इंजरी। थर्ड इज व्हाट? अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, इंपॉर्टेंट टू नोट दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, देन मेजर ऑफ डैमेजेस कैसे नोट करेंगे हम लोग? Scale or rule by reference of which damages to be recovered are assessed. In theory, the principle of restitutio in integrum is followed. However, usually restitution is only notional in the award of damages, and the court awards the damages which it thinks fair and adequate for the injury sustained. Thus, the court aims at compensation, not restitution. ठीक है, compensation पे कोर्ट ज्यादा फोकस करता है। Then, what are the types of damages? Contemptuous. Such damages are awarded when the court forms a very low opinion of the plaintiff's claim and thinks that the plaintiff does not deserve to be fully compensated, either due to a trifling matter or due to plaintiff's own wrongdoing. ठीक है। Second, there is the prospect of nominal damages. It is in the cases of injurious in damnum, where there is injury to the plaintiff but not much by the way of रियल डैमेज। एशबी वर्सेस केस का मैं एशबी वर्सेस वाइट का केस मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। आप उसको रिवाइज करिए, देखिए कि उसमें क्या बोला गया था। देन ऑर्डिनरी और सब्सटैंशियल और कंपनसेटरी डैमेज। इट इज awarded to compensate plaintiff for the injury sustained when the injury is aggravated by the conduct and motives of the defendant. The damages may be so increased or aggravated as to fully compensate the victim eventually. Right. Then there is the concept of exemplary damages as well. Right, in excess of the material loss suffered by the plaintiff to prevent similar behavior in the future, the injury done is so grave and reprehensible in character as to defy quantification. भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर का केस मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान याद करिए। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड एग्जेम्पलरी डैमेजेस। मतलब सिमिलर बिहेवियर वापस रिपीट ना हो, इस वजह से एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। Then there was the case of Rooks versus Bernard. Lord Devlin held that the exemplary damages confuse the similar and criminal functions of law. Thus, these should be awarded only when oppressive, arbitrary, or unconstitutional action is done by the servants, or when the defendant's conduct is designed not only to harm the plaintiff but to make profit through the harm. देख रही है, देख रहे हैं, प्रॉफिट भी चाहिए डिफेंडेंट को। और where the exemplary damages are authorized by a particular statute.
तो देखिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस के भी एसेंशियल्स हैं कि कब अवॉइड करे जा सकते हैं। देन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग डैमेजेस। इसमें आता है कि प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचरिस्टिक डैमेजेस क्या होंगे, उसके बारे में बात होती है। इट मीन्स द compensation for damages which are quite likely to result from defendant's wrongful act but have not yet resulted from it at the time of award. At the time of the award, the plaintiff should be compensated for every prospective loss which would naturally result from defendant's conduct. Continuing damages क्या होते हैं? Where the cause of action is a continuing one, like continuing trespass, a new cause of action arises every day and it is open to the plaintiff to bring fresh action। ठीक है, जैसे कंटिन्यूइंग ट्रेसपास का एग्जांपल दिया है इन्होंने। ठीक है, हर एक दिन एक नया कॉज ऑफ एक्शन अगर अराइज होगा तो हर एक दिन नई डैमेजेस दिए जाएंगे। रेमेडीज तो हमें हर रोज ही चाहिए होगी ना, फिर अगर राइट हर रोज ब्रेक हो रही है तो डैमेजेस और रेमेडी भी हमें हर रोज चाहिए होगी, राइट। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डैमेजेस। इफ द सेम wrongful act violates two rights, successive actions may be brought in respect of each of them। Example, if a person is attacked by the another, leading to physical hurt, and his watch is eventually being broken। Right। जनरल एंड स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? जनरल डैमेजेस क्या होते हैं? एसबी वर्सेस बाइट में जनरल डैमेजेस ही दिए गए थे, which the law will imply in every violation of legal right need not to be proved by evidence eventually। स्पेशल डैमेजेस कहाँ से आते हैं ये देखना है हमें। रैडक्लिफ वर्सेस इवेंस का केस था, डैमेजेस दैट द कोर्ट विल नॉट इन्फर from the nature of the act, the plaintiff must allege and prove the particular loss beyond what is sustained by general public। ठीक है, अगर पब्लिक न्यूजेंस में पर्सनल न्यूसेंस भी क्रिएट हो रही है तो पर्सनल का स्पेक्ट्रम कितना है, ठीक है, तब जाके स्पेशल डैमेजेस नोट हो पाएंगे। डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी पे ही आते हैं अब हम लोग, राइट। दीज आर टू ऑफ टू टाइप्स, पेक्यूनियरी एंड नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस, राइट। पेक्यूनियरी लॉस इंक्लूड्स व्हाट? consequential expenses, cost of care and loss of earnings। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंसेस क्या होंगे? अगर कोई भी लॉस होता है, ठीक है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए भी कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंसेस होंगे। मतलब उस चीज को, फॉर एग्जांपल किसी किसी नेग्लिजेंस की वजह से घर टूट गया, ठीक है, गाड़ी ठोक गई, उस घर को ठीक कराने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसको कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसका टेक केयर करने के लिए भी, अगर कोई मरा मरा तो नहीं, चलो किसी को इंजरी हुई हो, टेक केयर करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ केयर होगी। ठीक है, देखिए कोई सा दुकान था, दुकान टूट गई अगर, तो लॉस ऑफ अर्निंग्स भी होंगी, एलओई, लॉस ऑफ अर्निंग्स, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। देन नॉन पेक्यूनियरी लॉस इंक्लूड्स पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटीज, लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। ये देखिए इनटेंजिबल होती हैं और ये टेंजिबल है। दीज आर टेंजिबल एंड दीज आर इनटेंजिबल इन नेचर, राइट। क्वांटिफिकेशन of non-pecuniary damages is subject to certain rules। Damages awarded should be reasonable and moderate, of course. Regard should be had to the awards made in comparable cases। Sums of award must to a considerable extent of convention। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस ऑफ अर्निंग में कोर्ट क्या कंसिडर करेगा? लॉस ऑफ अर्निंग में, ठीक है, कोर्ट विल कंसिडर एक्चुअल लॉस ऑफ अर्निंग अराइजिंग टिल डेट, प्रोस्पेक्टिव लॉस कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन द डैमेजेस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग पिटिशन। देखिए इंटरेस्ट भी तो चाहिए ही होगा ना इवेंचुअली। किस बेसिस पे होता है इंटरेस्ट? इन्फ्लेशन के बेसिस पे होता है। लाडो वर्सेस यूपीईबी का एक केस है। टेस्ट ऑफ डैमेजेस इज व्हाट द कंटेम्पररी सोसाइटी वुड डीम एज फेयर और व्हाट लोक अदालत वुड अवार्ड इन अ केस, राइट। देन क्लॉज माइटल बाकेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल का एक केस था। पेक्यूनियरी एज वेल एज नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ डिपेंडेंस नेग्लिजेंस पर इवेंचुअली अवार्डेड। मतलब देखिए अवार्ड अवार्ड तो मिलेगी, अगर नेग्लिजेंस होगा तो एक अवार्ड मिलेगा आपको। अवार्ड का मतलब होता है पैसा कितना मिलेगा in terms of the loss which has occurred, where damages are not recoverable। डैमनम साइन इंजीरिया क्या होता है? कमेंट पे लिखिए, पढ़ा चुका हूं मैं। डैमनम ऑफ वन पर्सन एंड इंजीरिया ऑफ अनदर। कैटल वर्सेस स्टॉक ऑन वाटर वर्क्स। ए हायर्ड बी टू बिल्ड अ टनल। एज नेबर सी
was carrying out certain waterworks which caused flooding of A's land. This increased B's expenditure in building the tunnel. It was held that B's action against C would not be maintained as C owed a duty only to A. Even though damage was caused to B, the injury was of A, whose land was eventually flooded. ठीक है, इजी है. इफ डैमेज विच इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, अगर डैमेज बहुत ही रिमोट है, अगर माइनर है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, मैंने आपको मैक्सिमम पढ़ा दिया ऑलरेडी, राइट. इंजंक्शंस कौन से इन टॉर्ट्स, इंजंक्शन इज ग्रांटेड टू प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट or disturbance of right for the purpose of better enforcing right or preventing mischief, or where the remedy of damages would be inadequate or practically worthless. ठीक है. सो वेरी इजी, ये तीन एसेंशियल्स है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा इवेंचुअली, सच बताऊं तो. ठीक है, इसमें इसमें कोई और रामबाण है नहीं जो मैं आपको बता पाऊंगा. देन देर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. व्हेन द प्लेंटिफ इज रॉन्गली डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल. ठीक है, रेस्टिट्यूट कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, राइट. रिमोटनेस ऑफ डैमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, राइट. आशा करता हूँ आपको ये समझ आया. मेन इसमें डैमेजेस का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, उसी के ही ज़्यादातर पीवाईक्यू भी हैं. मेजर किस तरीके से होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का जो प्रोस्पेक्ट है, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, जो आपको अगली वीडियो में पक्का मिल जाएगा. शुक्रिया देखने के लिए.